स्टार्ट अटेम्प्टिंग आंसर्स, राइट? आप दिन के 2 ही आंसर लिखिए, बट लिखिए. डोंट लिव इन द फियर ऑफ कि आई एम गोइंग टू राइट वेरी बैड आंसर्स, अभी तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ लिख ही नहीं सकती हूँ. आपका पहला इंस्टिंक्ट हर चीज को डिफाइन करना नहीं होना चाहिए, ओके? अंटिल अनलेस इट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस, या उससे रिलेटेड रीसेंट इवेंट में कोई भी इंसिडेंट नहीं है, या इट इज समथिंग वेरी वेरी स्टैटिक. थोड़ा सा आपका वर्ड लिमिट क्रॉस होने लग जाएगा इफ यू स्टार्ट राइटिंग सो मच. दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क, ओके? यू नीड टू टेक अप पॉइंट्स फ्रॉम हियर, ट्राई टू रिमेंबर व्हाट यू कैन एंड देन एड्रेस इट इन योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. टेररिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत तरह से एक्सप्लेन किया है ना? एंड देयर इज नो वन अग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. कभी कभी क्या होगा ना कि आपके क्वेश्चंस में डायमेंशंस या आपके क्वेश्चन में पार्ट्स इतने ज्यादा होंगे ना कि आपको चाहते हुए भी आप वे फॉरवर्ड नहीं मेंशन कर पाओगे. इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपसे डायरेक्टली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी और स्कीम या कोई एक्ट है, डायरेक्ट वहां से पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन, आपका कीवर्ड्स बहुत क्रूशियल हो जाता है. आप क्रिटिसिज्म तो बताइए गई, बट क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने इन 2 एक्ट्स को अमेंड किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा. तो क्या सोचा है, क्यों उनको लगा कि ये इनको अमेंड करना जरूरी है, तो यू मस्ट address the significance of these amendments. Sometimes the questions get repeated, sometimes you will see कि the way of asking question is similar. They'll not frame the question in the exact same way, but the context that you need to write in that question will be very very similar. Hello everyone, welcome back. Today we will discuss a new topic within internal security, that is terrorism and organized crime. Again, a very important part in your internal security within your GS3 paper. Questions have been coming very frequently. Last question that came was in 2023. There's again a high chance of it coming in 2025, considering the recent terrorist attacks that have been taking place. Okay, so again, for few reasons this topic becomes important. Okay, first of all, the ongoing problem that India faces with terrorism. Okay, that is something, you know, our country suffers a lot from it. In the past also we have suffered, now also the recent Pahalgam attack and things before that. Apart from that, terrorism has you can say a direct and also an indirect connection with organized crime. And organized crime is something which again has been a nuisance in India's internal security. So understanding this topic alone and together becomes very important, and also kind of understanding the interconnections between these two topics. Okay, so through PYQs again we will discuss the questions which have been asked in the past related to terrorism and organized crime. We will see as to how we go about attempting answers like this and what are the requirements you need to fulfill so that you can ensure that you fetch good marks if questions are asked from this topic. Okay, so we will begin with our first question. There is something which you need to understand is मेंस के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी देर आर क्वेश्चंस विच आर वेरी ऑब्वियसली गिवन टू यू. बाय दैट आई मीन दैट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पूछा है या मेरे को इस क्वेश्चन में क्या एड्रेस करना है. ओके, समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन अ वे वेयर द question asker is going to be subtle about certain parts of the question, which will seem that it is just a sentence, and you will rather skip that and focus on something which is more obvious. But sometimes आपके normal sentences में भी जो question mark के साथ end नहीं कर रहे हैं उसमें भी एक question छुपा होता है. Okay, what I'm saying, I'll explain it to you through this question, and it is very important for you to identify such statements which needs to be addressed in your body part of the answer. वो आपको देख के लगेगा कि एक नॉर्मल सेंटेंस है, बट आपको उस पार्ट को भी एड्रेस करना है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, एंड देन आपको क्वेश्चन का मेन बॉडी पार्ट, ऑफकोर्स जो ऑब्वियसली आपसे पूछा गया है वो तो आपको करना ही है. ओके, so if you see this question, it is a 2023 10 marker question again, so 150 words.
So use of unmanned aerial vehicles by our adversaries across the borders to ferry arms and ammunitions, drugs, etc. is a serious threat to internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat. Now, for someone जो ये आंसर पहली बार देखेगा, सॉरी ये क्वेश्चन पहली बार देखेगा, मान लीजिए यू आर समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आंसर राइटिंग और यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जर्नी. नाउ अभी इस स्टेज पे आई हैव अ रफ आइडिया और एज टू व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन और इसमें कैसे किसको किस चीज़ों को कैसे एड्रेस करना है, हाउ डू वी नीड टू स्टार्ट द इंट्रो. बट आप ask this question to me 4 years back and this is how I would answer the question. I will first start by defining what UAV is. Okay, मेरे को लगेगा ये बहुत ही ऑब्वियस सा चीज़ है, UAV फट से डिफाइन कर देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या है और उसके बाद I will directly jump on to this part. मैं क्या करूँगी, मैं अपने बॉडी में ये कमेंट वाला जो सेक्शन है क्वेश्चन का इसको फटाफट एड्रेस कर दूंगी. जो भी लिमिटेड नॉलेज होगी मेरे पास उस टाइम पे मैं उनको बता दूंगी कि क्या मेजर लिए जा रहे हैं एंड देन आई विल कंक्लूड. इस पोर्शन में आई विल यूज मेजॉरिटी ऑफ माई 150 वर्ड्स का चंक. इसमें मैं 2-3 लाइन यूज करती और कंक्लूजन में भी फिर 3-4 लाइन यूज करके आई वुड हैव फिनिश्ड दिस आंसर. ओके, फेयर, मतलब ठीक है. ओके, आप किसी को लगेगा कि हाँ ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस, बट इफ यू आस्क मी टुडे देयर आर 2-3 थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला इंस्टिंक्ट हर चीज को डिफाइन करना नहीं होना चाहिए. ओके, अनटिल अनलेस इट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी ऑब्वियस या उससे रिलेटेड रीसेंट इवेंट में कोई भी इंसिडेंट नहीं है या इट इज समथिंग वेरी वेरी स्टैटिक एंड समथिंग विच नीड्स अ लिटिल एक्सप्लेनेशन. आपका पहला इंस्टिंक्ट हर चीज़ को डिफाइन करने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट वो है तो बहुत सारे बच्चों का वो है ना. अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक फर्स्टली ऑफ डिफाइन कर देते हैं इसको, कभी कभी नहीं समझ में आता तो हर चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, विच इज़ फाइन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन. बट इन टॉपिक्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी देयर आर recent events surrounding, so please make a habit of starting your intro with some recent event and relate it to the main thing that is being asked, rather than simply defining what is UAVs. So you can start by the recent May 2024 event where the BSF shot Pakistani drone carrying arms and heroin worth 10 crore in Amritsar. Now what happens because of such incidents? There is a challenge to India's internal security. ऐसे आप आंसर स्टार्ट करिए. This will fetch you more marks. This gives a good impression on the examiner. Okay, because again it is a ongoing issue. So ये नहीं करना है या अवॉइड करिए, मैक्सिमम पॉसिबल अवॉइड करिए. बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है एंड यू डोंट नो एनीथिंग रिसेंटली उस इवेंट के बारे में, तब इसको बिल्कुल अपना लास्ट केस सिनेरियो रखिए. अदरवाइज ऑलवेज ट्राई योर आंसर्स कि आप किसी रिसेंट इवेंट से स्टार्ट करिए. ओके, नाउ फिर मैंने क्या बोला, आई वुड डायरेक्टली जंप ऑन टू द पार्ट वेयर दे आर आस्किंग मी टू कमेंट ऑन द मेजर्स टेकन. नाउ हमें ये समझने का जरूरत है कि इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है. ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट क्या है कि हमें ये बताना है कि हाउ इट इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, हाउ दीज रोग UAVs आर ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, दैट इज नॉट जस्ट प्लेन स्टेटमेंट, दैट इज the UPSC asking you to tell you कि how it is a threat. Although आपको लगेगा कि सिंपल सा एक सेंटेंस दे दिया है, बट नहीं, आपको समझना है कि उन लिमिटेड वर्ड्स में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पार्ट को टच करते हुए जाना है कि वो थ्रेट कैसे है, एंड देन यू विल डिस्कस एज टू व्हाट आर द मेजर्स दैट इज बीइंग टेकन. ओके,
सो सिंपली कॉमेंटिंग ऑन द मेजर्स विल नॉट डू, यू विल गेट मार्क्स. ऐसा नहीं है कि आपका कॉमेंट वाला काट देंगे क्योंकि आपने पहला पार्ट को एड्रेस नहीं किया है, बट अगेन आपको कम मार्क्स मिलेंगे. और जिस बच्चे ने इस पार्ट को भी समझा होगा, उसको ये चीज चमक गया होगा कि आई नीड टू आंसर दैट पार्ट ऑल्सो, सो ही और शी विल स्कोर मोर मार्क्स. सो ऑलवेज गिव few seconds on your question, read it अच्छे से and try to understand the parts in your question. First of all, this is what I have been repeating consistently for the past 3-4 lectures now, because trust me, it is very important for you to understand what are the parts of the question, what are the things you need to address. The more you start missing out, the less marks you will score and you will start getting out of the game उसी प्रोसेस में, है ना. So you need to address the threat, and what could be the threat? Now you can write anything. arms and narcotics का smuggling होता है उससे, cross border terror support, surveillance and espionage, terror attacks and IED dropping, civilian and economic threats. Now एक चीज और है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ऑब्वियसली नहीं, मतलब इट इज ऑब्वियसली मेंशन्ड, बट सिंस इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड एज अ क्वेश्चन, सो सम पीपल माइट mistakenly ignore that part, or you can also say कि that is not the major part of the question, even though it is crucially important for you to attempt it. The measures part is the major part of the question because it has been obviously mentioned. तो इस पहले वाले पार्ट को यू कैन ऑल्सो एड्रेस बाय अ स्पोक एंड व्हील मेथड. ओके, इस तरह से भी आप कवर कर सकते हो. इफ यू फील कि इतना ज्यादा अगर आप, ऑफकोर्स दिस इज समथिंग विच विल थोड़ा सा आपका वर्ड लिमिट क्रॉस होने लग जाएगा इफ यू स्टार्ट राइटिंग सो मच. दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क. ओके, यू नीड टू टेक अप पॉइंट्स फ्रॉम हियर एंड remember try to remember what you can and then address it in your question accordingly. So you can also do it in this way कि आपने rather than occupying a big chunk of, because आपको 2 ही पेज मिलेगा, it is a 10 marker question, तो rather than occupying a big chunk of theoretical words in your answer sheet, you can, ये आपकी शीट होगी, यहाँ आपका क्वेश्चन मेंशन्ड होगा एंड दिस विल बी द पार्ट which will be available to you, right? So you can always start with your intro and then kind of explain it with a weak and spoke method, and then you can start writing measures यहाँ से. Okay, you can do that also, and if not you can write it simply also. ऐसे भी आप उसको address कर सकते हो pointers में, that is also fine. Both of the things will work. Then coming back to the measures part, which is the main part of the question. Okay, now the measures being taken could be written in one way, जहाँ पे आपने measures लिखा, okay, and then आपने 1 2 3 4 5 points mention कर दिया. Okay, good enough. मैं भी ऐसी attempt करती थी, but don't you think if it would be better अगर हमने उनको certain sub headings में divide कर दे, अगर हम divide it into border and tactical measures, policy and regulatory steps. Now this is something जो आप अपने one pager note में measures के अंदर ऐसे भी note down कर सकते हो. You can note it down कि अगर measures पूछ रहा है internal security में, तो I need to address it in part wise, wherein the first part could talk about border and tactical measures. The second part could talk about policy and regulatory steps. Okay. The third part could talk about capacity building and innovation. And then you can give 1 or 2 points under that with an example. You can also write in that way, and that is a better way to frame your answers. जितना ज़्यादा आप अपने आंसर्स को पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट को क्लियरली एड्रेस करिएगा, द मोर मार्क्स यू विल फेच. वाई? बिकॉज इट विल ऑलवेज पुट एन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि आपको क्वेश्चन का इनसाइड आउट अच्छे से पता है. सिंपली मेजर्स
is something which most of the students will attempt it in that way. I also used to attempt it in that way. Certain questions में अभी भी मैंने अपने मेंस में उसी तरह से attempt किया है in places जहाँ मुझे उस time पे नहीं याद आया है कि कैसे attempt करना है. That is not wrong, but this is better. Okay? So talk about border and tactical measures, anti-drone system, surveillance upgrades, drone detection grades, policy and regulatory measures में आपका drone rules आ जाएगा. Recently amend भी हुआ है 2021 में. Please go through that. What are the amendments? Understand the zones कि कौन कौन से yellow, red, certain zones हैं जहाँ पे ड्रोन आप उड़ा सकते हो, कहाँ नहीं उड़ा सकते हो, किस हाइट तक उड़ा सकते हो. एक बार just roughly go through that. Keep it roughly in your mind. Okay? And then कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन में ऑलवेज आप R&D की बात कर सकते हो. इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, पब्लिक अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग एप्स है, मेक इन इंडिया इससे इनकरेज हो रहा है, काउंटर ड्रोन प्रोटोकॉल्स, थिंग्स लाइक दैट. एंड देन कंक्लूड योर आंसर. ओके, होलिस्टिकली सबको ऊपर से कंबाइन करते हुए कि द इवॉल्विंग यूज ऑफ ड्रोन्स बाय नॉन स्टेट एक्टर्स एंड हॉस्टाइल नेबर्स मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन asymmetric warfare and internal threats. Only a multi-agency, multi-layered approach can secure Indian airspace and ground assets from this emerging menace. Good enough conclusion? अच्छा conclusion है. Also, एक और चीज, आप अपने आंसर्स में अभी से ये आदत डाल लीजिए कि आप conclusion, मान लीजिए if suppose this is the conclusion you are writing, okay, this is the conclusion you are writing. In your paper, there's no provision of you highlighting them, okay, because आप पेन का कलर नहीं चेंज कर सकते. You have to write with the same ink, but make a habit of underlining the important things, okay, or the keywords. जैसे मल्टी एजेंसी, मल्टी लेयर्ड अप्रोच, इनको अंडरलाइन करिए. Why it is important? क्यों अंडरलाइन करने बोला जाता है? Because whoever is checking your copy, he or she can clearly एक बार में उनकी नजर पड़ जाएगी कि अच्छा, okay, what are the words you have mentioned, okay, what are the relevant words you have mentioned, and also puts up a good impression that you have understood that these are important words that you need to mention, and hence you have underlined them. Okay, now moving on to the second question. Now if you see this question, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए. जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस. Winning of hearts and minds in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the government in this respect as part of conflict resolution in Jammu and Kashmir. Do you find any similarity? कुछ सुना सुना लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है ये क्वेश्चन? Yes, of course, because इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, जहाँ पे उन्होंने लोकल पॉपुलेशन की बात की है ना. यहाँ पे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को के कॉन्टेक्स्ट में उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है. वहाँ पे आई थिंक देयर वाज अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन क्यों लोकल पॉपुलेशन का ट्रस्ट होना ज़रूरी है, या लोकल पॉपुलेशन मिलिटेंसी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, है ना. आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन. It is similar to this. Reiterating what I have been telling you and what all the other rankers will tell you, the relevance of PYQs. Sometimes the questions get repeated. Sometimes you will see that the way of asking question is similar. They'll not frame the question in the exact same way, but the context that you need to write in that question will be very, very similar. So if you create a framework of all the PYQs, it is going to benefit you a lot. You cannot underestimate the value that PYQs hold. तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में भी आपको लोकल पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है ना. उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतना क्यों ज़रूरी है? क्यों? ताकि वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट ना करें, उनको ऐसा इंसेंटिव्स ना दे पाएं टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स, सो दैट दे गो दैट साइड. सेम सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न है. सो start with an introduction.
okay, where you talk about how Jammu and Kashmir is affected by terrorism, and that is why, that is, you know, which has created cycles of violence, alienation and distrust. ठीक है, keep underlining them अपने आंसर्स में. ओके, then while security operations are necessary, sustainable peace, now important word, violence is not the answer to everything. ओके, ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं ना कि क्यों नहीं ब्रीच करके, क्यों नहीं उनको वो कर दिया, क्यों नहीं मार दिया. ऑफ कोर्स वर्स्ट केस सिनेरियो में वही हो रहा है, बट इजंट इट, यू नो, बेटर दैट देयर इज सस्टेनेबल पीस? And how do you attain that sustainable peace? You have to ensure that the security is on the guard, but uske साथ साथ if we can also ensure that there is a people centric governance, development outreach and emotion integration. This is how you achieve sustainable peace. How? By doing these three things. Important words, you can begin your introduction with them. It is good introduction. Okay, you can start your introduction this way. Again, 10 mark का question तो है, but there is a 2 part in it. One which has been made very obvious, second one which has simply been written in a sentence, and आपको समझना है कि अच्छा उस part को भी हमें address करना है. So the first thing which you need to address is the importance of winning hearts and minds on the terrorism affected areas. क्यों important है ये? And then we will talk about the measures adopted. Okay? So now why is it important? Public trust, militant population का nexus break होता है, youth participation encourage होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प कर सकते हो आप, यू नो, एज अ लोकल पॉपुलेशन. अगर you can, if you can, you know, have a sustainable peace within your local population, the officers of the intelligence agency could see a very faithful friend in the local population who could help them achieve the इंटेलिजेंस गैदरिंग, है ना. हर जगह हर समय हो सकता है कि सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपना प्रेजेंस ना मेंटेन कर पाए. दैट कुड बी सप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लोकल पॉपुलेशन. ओके, एंड देन लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स वो तो है ही इंपॉर्टेंट. And then there is the second part of the question which talks about government measures for conflict resolution in Jammu and Kashmir. Now remember this, आपसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा है तो you will only talk about in context of जम्मू एंड कश्मीर. दूसरे स्टेट्स के बारे में मत बात करने लगिएगा, that will not fetch you marks. अगर पूरे इंडिया के बारे में बोला होता, of course you can mention the question, answer the question holistically, but क्योंकि आपसे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो सकता है आपको सिर्फ उस बारे में बात करना है. और मेजर्स को आप अगेन डेवलपमेंट ओरिएंटेड, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट आउटरीच, cultural and psychological engagement, political and administrative integration, de-radicalization and security balancing, इन तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना. You can also take a pestle approach in this. politically क्या measures है, economically कुछ अगर measures लिया जा रहा है तो social welfare के लिए क्या किया जा रहा है, you can address it in that way also. Or you can also talk in this way, development orientation, जिसमें you can mention 1 or 2 schemes and what are they doing to ensure that. Then you can go to educational and employment outreach, super 50 coaching के बारे में बात कर सकते हो आप, this was in the news. And then you can also talk about recruitment in army and CAPFs. 1 or 2 points हर किसी में, you don't have to mention all of it. Pick up points which you feel कि आपको याद रह सकता है, and keeping the word limit in mind, answer the question. Okay, and then cultural and psychological engagement है, जैसे कि ऑपरेशन सद्भावना, कश्मीर महोत्सव, स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स, and political and administrative integration. Of course, you need to talk about the abrogation of Article 370. It becomes very important. Delimitation and पंचायत elections क्यों important है,
डीरेडिकलाइजेशन एंड सिक्योरिटी बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं हम, तो डिवाइड, हमेशा कोशिश करिए कि मेजर्स को, एक मेजर जो आपका मेजर हेडिंग है उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करिए और उन सब हेडिंग्स को अलग अलग एड्रेस करिए. इट गिव्स अ क्लीन आउटलुक टू योर आंसर. अच्छा लगेगा, आपको भी वो आंसर पढ़ के अच्छा लगेगा. कोई दूसरा बच्चा जिसकी आपको कॉपी चेक करने को मिल जाए, उसने भी अगर इस तरह से क्वेश्चन को आंसर किया होगा, यू विल फील अंदर से कि इस बच्चे को ज्यादा मार्क्स देते हैं, रादर देन समवन जिसने मेजर्स लिख के 5 पॉइंट मेंशन कर दिया है, राइट. And then your conclusion about how the approach should be holistic, it should be development inclusive, dialogue, ये सारी चीजें important है. Okay, now moving on to, ये आपका हो गया टेररिज्म का 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे आंसर ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. अब यू कैन सी हियर, इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही आपसे पूछ दिया है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स पहले तो होता क्या है, ऑफ कोर्स, एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. डायरेक्टली आपके सिलेबस से उठाया हुआ क्वेश्चन है. ये आपका स्टैटिक पार्ट है, तो यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज कि ये नहीं आता था. ये आपके सिलेबस का डायरेक्ट सिलेबस से पिकअप किया हुआ है. दिस यू शुड नो. डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. आपको लिंकेजेस एक्सप्लेन करने हैं किनके बीच में, टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बीच में, दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल. अगेन मोर और लेस अ स्टैटिक पार्ट, but you need to complement this with current events. linkages समझना is something जो आपको पता होना चाहिए. वो स्टैटिक पार्ट है कि क्या दोनों में linkages होता है, बट उन linkages को आप recent events से अगर explain करोगे तो that would be better. Okay, so this is a mix of static and current. पहला पार्ट आपका static है. Okay, अब इस तरह के क्वेश्चन में you can start by telling the definition. If there is an organization, global organization है अगर कोई, है ना, UNDOC, UNODC हो गया, या मान लीजिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में WTO है, या कोई हेल्थ का क्वेश्चन है उसमें WHO है. इन ऑर्गेनाइजेशन, या मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट का है ना, UN का डिजास्टर रेजिलिएंट. आपके पास अगर इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का डेफिनेशन है, वेर यू नो व्हाट दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और थिंग्स लाइक टेररिज्म, एंड यू नो द डेफिनेशन व्हाट दे हैव पुट अप, so you can always mention that. That is a good way to go about. Rather than writing your own definitions, in worst case scenario, try to write definitions from organizations which are globally accepted. ठीक है, तो यहाँ पे you can tell them कि इन्होंने organized crime को कैसे define किया है, that it is a continuing criminal enterprise, okay, that rationally works to profit from illicit activities that are often in great public demand. Its continuing existence is maintained through corruption of public officials and use of intimidation, threats or force to protect its operation. ये आपका एक holistic definition हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का. ऐसे भी आप जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नोट्स बनाइएगा अपने GS3 में, तो आपके 1 पेजर नोट्स में ये डेफिनेशन होना चाहिए. ओके, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तो बारे में आप पढ़ोगे, बट इंटरनेशनल, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, राइट. यहाँ हर कंट्री में इस चीज़ का प्रॉब्लम है. सो ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस एंड देयर इज अ डेफिनेशन, ट्राई टू रिमेंबर इट. अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिससे आप उसको बार बार दोहराइएगा तो आपको याद रह जाएगा. ऑफ कोर्स if you cannot remember the exact definitions, that करके at least give the crux of what they are saying. but अगर आप quotations में उसको डाल रहे हो तो please remember, तब आपको exact definition लिखना पड़ेगा. You cannot make that grave grammatical error कि आपने quotes में डाल दिया
and you have not written exactly what they have said. Either summarize their definition, and if you have to put it in quotes, then remember the exact definitions. Okay? Now, types of organized crime में अब this is ये easy part है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए. ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आर्म्स स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, काउंटरफिट करेंसी है, साइबर क्राइम सिंडिकेट्स है, ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेटिंग है. इसमें होता क्या है और एक एग्जाम्पल हर किसी के साथ. ओके, दिस विल सफाइस, ये काफी है. नाउ अब आपको यहाँ बताना है, आप देखिए, डिस्क्राइब द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द, पहले तो आपको लिंकेजेस बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि नेशनल लेवल पे कैसे लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं एंड ट्रांसनेशनल लेवल पे कैसे. दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस, दोनों पार्ट को आपको, दोनों लेवल्स को आपको एड्रेस करना है. ओके, सो नाउ this is the linkage between terrorism and organized crime which you can explain through the diagram. अब measures बताने का आपके पास यहाँ word limit खत्म हो जाएगा, of course, because you already have addressed a lot of things in this question. So you can simply conclude by just giving a little way forward in your conclusion itself कि कैसे आप कुछ चीज़ों को का अगर आप ध्यान रखिए, जैसे coordinated intelligence, legal reforms, international cooperation, capacity building of law enforcement, financial monitoring, ये सारी चीज़ें करिए तो आप इन सब चीज़ों को कम कर सकते हो, है ना. You know, you can lessen it. You can also in some future you can also be ambitious to end them, right? So rather than अलग से way forward लिख के conclusion mention करिए, वो आप शायद नहीं कर पाइएगा because आपके पास इतना वर्ड्स नहीं बचेगा. तो कंक्लूजन में ही थोड़ा सा वे फॉरवर्ड डाल के फिनिश द आंसर. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एनालाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म. ओके, अब ये क्वेश्चन इज अ मल्टी पार्ट क्वेश्चन. ओके, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism. आप देख रहे हो कितना मल्टीपल पार्ट्स है इस क्वेश्चन में. It will be very easy for someone who has not done enough answer writing to quickly skip the parts. कुछ ना कुछ पार्ट्स मिस हो जाएगा उनसे, है ना. या वो लोग मतलब एक बॉडी में जल्दी जल्दी से एक बर्ड आई व्यू लेके आंसर को क्वेश्चन करने को, सॉरी क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे. बट दैट इज नॉट हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस आंसर. आपको हर एक पार्ट को बताना है ना. कम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म के बारे में आपको बात करनी है. ओके, देन यू हैव टू टॉक अबाउट कि कॉजेस क्या है टेररिज्म का. ओके, लिंकेजेस और ऑब्नॉक्शियस नेक्सस क्या है टेररिज्म का. यू सी, यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स है इस क्वेश्चन का. एंड फिर आपको मेजर्स के भी बारे में बात करना है कि कैसे आप टेररिज्म के मेनेस को आप एड्रेस करते हो. एंड देन यू विल हैव टू एंड योर क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का. हम पहले बात करेंगे कि हम पहले एनालाइज करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म. विल गो सीक्वेंस में. ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी. उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन. तो व्हाट इज टेररिज्म. अब एक चीज समझिए कि टेररिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत तरह से एक्सप्लेन किया है ना. And there is no one agreed definition of terrorism. ठीक है. So please be careful and be a little cautious as to which definition you are using terrorism, because आप क्योंकि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो टेररिज्म की डेफिनेशन आप यूज करने जा रहे हो, इट शुड बी रेलेवेंट टू हाउ इंडिया सीज टेररिज्म.
ओके बहुत सारे कंट्रीज के अपनी अलग सी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग टेररिज्म की है, दैट इज फाइन, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप टेररिज्म को एड्रेस कर रहे हो या टेररिज्म को डिफाइन कर रहे हो तो आपका वो डेफिनेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए. वी एज अ कंट्री, हम एज अ कंट्री टेररिज्म को क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने टेररिज्म का आंसर देना है ना. तो टेररिज्म को हम क्या समझ रहे हैं, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ. अब यहाँ पे ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट विद डेफिनेशन या आप यहाँ पे रीसेंट इवेंट भी दे सकते हो. ओके क्योंकि इस क्वेश्चन में टेररिज्म को इतनी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है ना, तो यू कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद डिफाइनिंग व्हाट टेररिज्म इज. ठीक है, बट अगेन आपके पास अगर रीसेंट इवेंट है जो इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस कर पा रहा है, देन ऑफ कोर्स यूज दैट रीसेंट इवेंट. ओके so what is terrorism? It refers to use of violence or threat of violence to achieve ideological, religious, political or economic objectives by instilling fear in the society. ठीक है, ये आपने बता दिया ब्रीफ में कि टेररिज्म क्या है, या आपको ये अपने रीसेंट इवेंट के बारे में बताइए, और वो रीसेंट इवेंट कोशिश करिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो, क्योंकि आपसे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ को सोचिए. पहले इंडिया के बाद के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, उसके बाद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सोचिए. ओके नाउ, तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी, विच वी विल फर्स्ट एड्रेस. तो क्या है, एनालाइज कैसे करेंगे हम इनके डायमेंशंस खोलेंगे. एनालाइज करने का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन में अगर आप ये वर्ड देखते हो, हमेशा ट्राई टू ओपन डायमेंशंस, एज मेनी डायमेंशंस एज यू कैन. आप एस्से के टॉपिक को भी एनालाइज करते हो, एक तरह से बोलते हैं ना एस्से में कि आपको डायमेंशंस खोलने हैं, जितना डायमेंशंस खोल सकते हो उतना बेटर मार्क्स आप स्कोर करोगे. आप क्या करते हो, आप टॉपिक को एनालाइज करते हो डिफरेंट वेज से, डिफरेंट डायमेंशन से. सो एनालाइज की जब भी बात आए, हमेशा उसको उसके डायमेंशंस को खोलने की कोशिश करिए. सो व्हाट कुड बी द डायमेंशन? इट कुड बी दैट इट इज एसिमेट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, मॉडर्न टेररिज्म क्या है? इट इज नॉन लीनियर, क्यों ऑफन एग्जीक्यूटेड बाय स्लीपर सेल्स, lone wolves, decentralized networks. The world is moving forward, and so the tactics of terrorists, right? So right now, the ways that terrorism is being pulled off has kind of changed. कुछ चीजें पुरानी वाली हैं and कुछ चीजें नई भी आ गई हैं. Things like sleeper cell, lone wolves, decentralized network. ये क्या है? This makes it asymmetric and decentralized. किसी भी इशू को हेड ऑन डील करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस वर्किंग. बट अगर उसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है तो इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टू डील विद दैट इशू. सेम इज द केस विद टेररिज्म. ओके, देन देर आर क्रॉस बॉर्डर डायमेंशंस. ओके, स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है. ये इंटेंसिटी को आपके एस्केलेट कर देता है ना, मोर कॉम्प्लेक्स बना देता है कि इंसर्जेंसी भी हो रही है और स्टेट भी स्पॉन्सर कर रहा है ना. इट मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर चैलेंजिंग. देन देर इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के आने से क्या दिक्कत हो गया है, बहुत इंक्रिप्शन बढ़ गया है, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन्स, प्रोपेगेंडा, फंडिंग. द इंटरनेट इज अ ह्यूज प्लेस. There is no saying कि किस चंक ऑफ पार्ट में कहाँ क्या हो रहा है. It is not possible to understand and catch each and every illegal aspect going around in the world of internet. Again, making this thing complex and difficult to deal with. Okay, and then there is urban and ideological penetration है. पहले क्या था? पहले दिक्कत थी, ये अभी भी दिक्कत है कि पहले सिर्फ लोकल पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही थी, बॉर्डर कंट्रीज के जो लोकल पॉपुलेशन है. अब बिकॉज की टेक्नोलॉजी का रीच हो चुका है, स्लीपर सेल्स हो गए हैं, लोन वुल्व्स हो गए हैं इन द अर्बन सिटीज ऑल्सो, सिटीज विच आर नॉट
द बॉर्डरिंग स्टेट्स, बॉर्डरिंग स्टेट का पार्ट नहीं है जो अर्बन सिटीज हैं, उसमें भी वी कैन सी कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना. एंड देन ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ लिंकेजेस. द मोमेंट टेररिज्म गेट्स इट लिंकेजेस विद द ऑर्गेनाइज क्राइम, ये चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं. आपसे यहाँ पे टेररिज्म संभालना एक टाइम पे मुश्किल हो जाता है, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को भी आप सीन में ले आओ तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. बिकॉज नाउ यू हैव टू डील विद दिस टू अगेन मैसिव इशूज, जिनके अपने खुद के प्रॉब्लम्स एंड इशूज हैं, उनके खुद के डायमेंशंस हैं, और साथ में मिला दीजिए तो वो चीज़ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो इट बिकम्स चैलेंजिंग, है ना. देन एड्रेसिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज द कॉजेज. कॉजेज क्या है? कॉजेज आपको मालूम है, पॉलिटिकल एलियनेशन है. ये आपको ऑफ कोर्स इजी क्वेश्चन कि कॉजेज क्या है टेररिज्म का, क्यों होता है टेररिज्म, व्हाई पीपल डू दैट. पॉलिटिकल एलियनेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, एग्जाम्पल दे दीजिए या थोड़ा एक लाइन में एक्सप्लेन करके फिर एग्जाम्पल दे दीजिए. रिलीजियस सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, एक्सटर्नल हॉस्टिलिटी, वीक गवर्नेंस एंड पॉलिसिंग. यहाँ पे आप बता सकते हो कि कैसे कुछ जगह कहीं कभी कभी तो ये भी होता है कि द गवर्नमेंट इज सो करप्ट दैट some people take up that charge to get over those things, and of course use of violence again to intimidate counts as terrorism. तो यहाँ पे वीक गवर्नेंस एंड पॉलिसिंग, गवर्नमेंट में अगर करप्शन है, नेबरिंग कंट्रीज अगर स्पॉन्सर टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियस आंसर्स. ऑफकोर्स जितना ज़्यादा डिप्रिवेशन होगा उतना द पीपल की टेंडेंसी होगी कि आप उनको रेडिकलाइज कर सकते हो, आप उनको उनके ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़का सकते हो कि देखो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती है ना. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ टेररिज्म. एंड देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेक्सेस जो है. अब लिंकेजेस और ऑब्नॉक्शियस नेक्सेस को आप देखिए क्या है. टेरर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सेस है एक, तो जो हम सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं. फिर टेररिज्म और साइबर क्राइम का एक अपना नेक्सेस है. कौन IS इन मॉड्यूल्स इन केरला एंड तेलंगाना, ड्रग स्मगलिंग इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट. देन देर इज अ टेरर एंड एक्सटर्नल स्टेट का नेक्सेस. फिर टेरर और लोकल गैंग्स का नेक्सेस है, ग्लोबल, एंड देन देर इज ग्लोबल लिंकेजेस, है ना. इंडियन ओरिजिन फाइटर्स ज्वाइनिंग ISIS इन सीरिया, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट थ्रू द डार्क वेब, है ना. मूवीज बन रही हैं इस चीज़ पे. आप एग्जाम्पल दीजिए, कुछ आपने न्यूज़ में अगर पढ़ा है कि इस पर्टिकुलर ओरिजिनेशन का कंट्री दूसरे कंट्री में जाके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, एंड टू इंश्योर दैट उसके खुद के कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कैरी किया जा सके. ग्लोबल लिंकेजेस को आप उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो. So this is the way you will explain linkages and obnoxious nexus. Think about the nexus जिसका टेररिज्म के साथ नेक्सेस होता है तो एक टेररिस्ट एक्टिविटी क्रिएट होने के चांसेस बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो है ही, बट एक्सपैंड योर थॉट प्रोसेस कि और किसके साथ नेक्सेस करने से इस चीज को बढ़ावा मिलता है. ओके, एंड देन explaining the convergence. You can use that diagram again that's why this diagram becomes very important. And addressing the last part of the question, which is measures to eradicate the menace of terrorism. क्या क्या measures है? Again measures को आप divide करिए सब headings में. security and intelligence reform की ज़रूरत है, then there जिसमें आप Unified National Counter-Terrorism Center for Coordinated Response, multi-agency real-time intelligence sharing, police modernization, ये ज़रूरी है ना. Then you can talk about legal and financial control. क्यों UAPA, NIA Act, PMLA इनको strictly. Now, menace of terrorism इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करना है ना. ग्लोबली पूछा जाएगा तब ग्लोबली आंसर करना है. राइट नाउ व्हेन यू हैव टू टेल देम द मेजर्स दैट यू नीड टू इरेडिकेट टेररिज्म, टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सोचिए. इंटरनल, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि इस तरह के आंसर्स को आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोच के लिखना है.
ग्लोबली अगर कुछ हो रहा है एंड द केस इज सिमिलर विथ इंडिया, देन दैट वर्क्स, वो ठीक है, बट योर थॉट प्रोसेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू कि हमारे कंट्री में क्या इशू है. ओके, देन देयर इज counter radicalization and de-radicalization is social political inclusion, again a very important thing. Global and regional cooperation, of course, intelligence sharing, counter terror training, quad, SCO है ना, diplomatic forums को leverage करना, these are all the things which will help in terrorism का eradication. And then conclude कि कैसे, you know, it is a dynamic and deeply interconnected phenomena demanding more force. It requires a whole of government and whole of society approach. ठीक है. Now, कभी कभी क्या होगा ना कि आपके क्वेश्चंस में डायमेंशंस या आपके क्वेश्चन में पार्ट्स इतने ज्यादा होंगे ना कि आपको चाहते हुए भी आप वे फॉरवर्ड नहीं मेंशन कर पाओगे. ठीक है, चैलेंजेस पूछा है तो ऑफ कोर्स करना पड़ता है, यू नो, बट आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में स्कोप है वे फॉरवर्ड मेंशन करने का, बट समहाउ बिकॉज देयर इज लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट मेंशन इट. सो अगेन आप मेंशन इट इन योर कंक्लूजन. ठीक है, यूज मैप्स. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आप मैप्स भी यूज कर सकते हो जहां आप बता सकते हो कि कौन कौन से स्टेट है जहां पे, जैसे कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो क्वेश्चन था, अगर आपको मालूम है कि कुछ चंक ऑफ स्टेट्स हैं जहां पे इन दोनों का नेक्सस बहुत स्ट्रांग चल रहा होता है, मेक अ डायग्राम एंड शो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन जगह का स्ट्रांग नेक्सस है, वो आप कर सकते हो. दैट ऑल्सो यू कैन डू. डायरेक्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये. ठीक है, जहां आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने, दिस इज अ 2019 का क्वेश्चन, 15 मार्कर का क्वेश्चन है. एंड आई रिमेंबर कि 2019 के में ही इट वाज द ईयर व्हेन UAPA वाज अमेंडेड. ओके, सो दैट इज व्हाई रिसेंटली वर्ड मेंशन्ड है यहाँ पे, अगेन emphasizing on the fact that the importance of current affairs in GS3 holds a big deal. So recently what has happened in 2019 के कॉन्टेक्स्ट में आप सोच के देखिए, UAPA आज के डेट में भी न्यूज में है. ठीक है, तो मे भी हो सकता है आपसे इस तरह से डायरेक्टली ना पूछा जाए, बट बिकॉज दे हैव आस्क्ड UAPA in the past year and UAPA is also in the news, you must know about UAPA. क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो, क्या उसमें होता है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें चेंज करने से उस लॉ को और बेटर यूज़ में लाया जा सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली देन, दे हैव स्टैंडर्ड द एंटी टेररिज्म लॉज बाय अमेंडिंग द UAPA एंड द NIA एक्ट. NIA एक्ट भी अमेंड हुआ था and analyze the changes in context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organization. तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे challenges क्या हैं उसकी. Of course, the government is doing it for the betterment, for the better security of the country, but some human rights organization might find some provisions of this act a little problematic, so you have to mention them. Okay, ये इस तरह के questions अगर आप डेली न्यूज़पेपर के टच में रहते हो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द एडिटोरियल्स, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल डायरेक्टली मिल जाएगा वहाँ से. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द बर्निंग इशू का मैगजीन, वेयर दे आर, यू नो, आप एक तो पहले वो मेंशन करते हैं कि क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उससे रिलेटेड देयर विल बी अ PYQ एंड देन दे विल टॉक होलिस्टिकली अबाउट क्या इशू है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मेजर्स है, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़. राइट नाउ, सो ऑफ कोर्स आप UAPA से स्टार्ट करोगे इसको, है ना, और NIA एक्ट के बारे में बताओगे. इन दोनों का एक समरी टाइप का बताइए अपने इंट्रो में कि इन लोगों ने क्या कोशिश करी है करने की. दे हैव ट्राइड टू इनहैंस द पावर्स ऑफ द स्टेट टू एड्रेस इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस सच एज लोन वुल्फ टेररिज्म, ट्रांसनेशनल थ्रेट्स एंड साइबर रेडिकलाइजेशन. कीवर्ड्स
इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपसे डायरेक्टली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी और स्कीम या कोई एक्ट है, डायरेक्ट वहां से पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन, आपका कीवर्ड्स बहुत क्रूशियल हो जाता है. मेंशनिंग द कीवर्ड्स विल फेच यू मार्क्स. एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स हियर? लोन वुल्फ टेररिज्म, ट्रांसनेशनल थ्रेट्स एंड साइबर रेडिकलाइजेशन. सो ऑलवेज गो थ्रू द एक्ट. ये नहीं कि आप उसकी पीडीएफ उठा के पूरी एक्ट पढ़ने लगिए, डोंट डू दैट. बट पीआईबी में उस एक्ट की समरी आती है ना. You can always take help of the newspapers. You can always take help of the Burning Issue magazine. Go through what that act is about. Anyone, कोई भी बच्चा जिसने इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी की है, वो मोटा मोटा उस समय में लिख तो देगा कि what this act is all about, but compare it with someone who is using these keywords, that person is going to fetch more marks. So keywords का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में. ओके, नाउ व्हाट आर द अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन डन इन यूएपीए एंड एनआईए एक्ट. ठीक है, नाउ ये देखिए चेंज क्या हुआ है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे ज़्यादा इस पे चर्चा हुई है. द न्यूज़पेपर्स वर फिल्ड कंटिन्यूअसली विद हाउ द डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल एज टेररिस्ट हैव बीन अ न्यू मूव, एंड इस पे क्रिटिसिज्म भी था लोगों का. So, important point to note. Then enhanced property seizure. What can NIA do? It can seize property connected with terrorism without proper prior state approval. And then expanded investigation power. ठीक है. और NIA में क्या amendment हुआ है? Extra territorial jurisdiction हुआ है उसमें. आउटसाइड इंडिया के अगर कोई क्राइम कमिट हो रही है तो NIA has been given permission. They have been allowed to investigate those crimes जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, है ना. एंड देन देयर आर एडिशनल ऑफेंसेस व्हिच हैव बीन एडेड इन अंडर NIA लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, साइबर टेररिज्म, आर्म्स स्मगलिंग. एंड देन देयर इज अ क्रिएशन ऑफ NIA का स्पेशल कोर्ट. ठीक है. देन अब सिग्निफिकेंस क्या है इन अमेंडमेंट्स का? ऑफ कोर्स एड्रेसिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना. Analyze the changes in the context of prevailing secure while discussing the scope and reasons for opposing the. Now, significance क्या है इसका? आप क्रिटिसिज्म तो बताइए गई, बट क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने इन दो एक्ट्स को अमेंड किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा. तो क्या सोचा है, क्यों उनको लगा कि ये इनको अमेंड करना ज़रूरी है? तो यू मस्ट address the significance of these amendments. You can either address them separately, और अगर एग्ज़ाम में उस टाइम पे टाइम क्रंच है, वर्ड लिमिट नहीं सब क्रॉस होने लग रहा है कि क्रॉस हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा कि अलग अलग कैसे एड्रेस करें, तो आप एक साथ भी एड्रेस कर सकते हो. क्योंकि बात यह है कि इस क्वेश्चन में दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वो लगभग सिमिलर ही है. सो रादर देन अटेम्प्टिंग बोथ ऑफ देम सेपरेटली कि इसका पहले सिग्निफिकेंस बताए उसका पहले सिग्निफिकेंस बताए, वो आपके वर्ड्स ज़्यादा खाएंगे. दोनों में अमेंडमेंट करने का एम इज कॉमन. एंड व्हाट आर दोज? कि लोन वुल्फ और ग्लोबल थ्रेट्स जैसे चीज़ों को हम टैकल कर सकें, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बन सके, NIA इनको हम एम्पावर कर सकें. एंड देन जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, विच इज़ द मेजर इशूज एंड क्रिटिसिज्म बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप. ये रिस्क ऑफ मिसयूज एंड आर्बिट्ररी लेबलिंग. भाई आपने किसी को पर्सन को अगर आप टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दे रहे हो एंड बाय चांस गलती हो गई उस प्रोसेस में, तो दैट टैग विच दैट पर्सन विल कैरी हिज होल लाइफ इवन दो ही इज एक्विटेड, है ना, इट स्टिल सेट्स अप सामने वाले के दिमाग में कि इसको टेररिज्म एक्टिविटी के लिए पकड़ा गया था. माइट हैम्पर दैट पर्सन्स फ्यूचर लाइफ. ये एक इशू हो सकता है. देन उनका बोलना था कि एक वीक प्रोसीजरल सेफगार्ड्स है, ठीक से नहीं बताया गया है, कोई टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है इस चीज़ में. देन दे सेड कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया गया है ना. यूएपीए प्रोविजंस ऑफन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ वायलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है. लॉन्ग प्री ट्रायल डिटेंशन, erosion of federalism, low conviction rate. These are the issues that were addressed by human rights के ग्रुप को, है ना.
एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको आपके न्यूज़पेपर और बर्निंग इश्यूज़ के मैगजीन्स में मिलती, उस टाइम पे भी मिलती और अभी भी अगर ये अमेंडमेंट होता तो भी आपको मिलता. सो रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड supplementing it with a current affairs magazine, it will help you. Again, current affairs magazine, maybe you have to be very selective about what you read. You don't have to read everything because it is not possible कि आपको हर चीज़ याद रहने जा रही है. Remember the limitations of things your brain can remember, but if it is something which is directly related to your syllabus in your static part or in your mains का syllabus, you have to read that current affairs. आपको 360 डिग्री मालूम होना चाहिए कि क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या इस पे चैलेंजेस हैं, क्या इस पे क्रिटिसिज्म्स आ रहा है ना. एंड देन कंक्लूजन ओके कि of course this is a forward approach in dealing with the issue of terrorism, but again जो loopholes हैं उनको आप address करना भी ज़रूरी है ना, so that transparency और time bound trials हम ले सकें to ensure justice and security and rights. okay, ये last question है हमारे आज के session का. okay, and then next class में we will discuss other remaining topics of internal security and then we will move forward to the next GS3 topic. okay, now अब यहाँ पे India's proximity to two of the world's biggest illicit opium growing states. India की proximity two of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced. कहाँ है? ये हमारा है इंडिया. ओके, ये इंडिया है. यहाँ पे है आपका गोल्डन क्रीसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंड ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड यू नो वियतनाम. सम पार्ट्स ऑफ वियतनाम ऑल्सो दे आर सेइंग कि वहाँ से भी हो रहा है अब. सो तो इस हम एंड दोनों एरियाज जो हैं इंडिया के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है. ये रही हमारी कंट्री है ना. तो अब इससे ऑफकोर्स अब इससे चैलेंजेस, सिक्योरिटी थ्रेट होने जा रहा है. सो इससे क्या हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी की कंसर्न बढ़ रही है. नाउ द मोमेंट ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगेन आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये मैप का रेलेवेंस बढ़ जा रहा है. आपको अपने क्वेश्चन में ये मैप बनाना है. आपको बताना है कि गोल्डन क्रीसेंट क्या है एंड आपको बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है. एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाना है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बट एक सिंपल डायग्राम आपको पता होना चाहिए जिससे मोटा मोटा ये समझ में आए कि हाँ ये इंडिया है, ये इधर के 3 कंट्रीज हैं, ये इधर के 3 कंट्रीज हैं. इतना आपको आना चाहिए. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मार्क्स मिलेंगे आपको इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम. एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलिसिट एक्टिविटीज सच एज गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. अब यहाँ पे इलिसिट एक्टिविटीज आपको बता दिया गया है कि क्या क्या इलिसिट एक्टिविटीज हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट, जिनके लिंकेजेस आपको ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ एक्सप्लेन करने हैं. तो आपको अलग अलग इन तीनों को एड्रेस करना होगा, है ना. एंड देन व्हाट काउंटर मेजर्स, क्या काउंटर मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सेम. ओके, let's move ahead in this question where you explain what and how, what are those two illicit opium growing states and India की proximity कैसे है by showing this diagram, and what this geographical proximity has done for the internal security of India, and that is that it has made India both a transit and destination country for drug trafficking, having wide range implications. Okay, अब आते हैं लिंकेजेस वाले पार्ट के बारे में, जहां आपको ड्रग ट्रैफिकिंग और अदर इलिसिट एक्टिविटीज के बीच में आपको लिंकेजेस बताना है. सो इलिसिट एक्टिविटी आपकी यहाँ पे मेंशन थी, जो कि थी आपकी गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ओके, गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इसके अलावा आप चाहो तो बाकी चीजें भी मेंशन कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्टिविटीज सच एज
गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ओके, अदर इलिसिट एक्टिविटीज. तो ये 3 तो आपको मेंशन करना ही है, जरूरी है, मैंडेटरी है. इसके अलावा अगर आप 2 से 3 और इलिसिट एक्टिविटी भी मेंशन कर दीजिए उनके लिंकेजेस समझाते हुए ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ, देन दैट विल फेच यू मोर मार्क्स. ठीक है, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ और 2-3 लिंकेजेस एक्सप्लेन कर दीजिए. इट विल शो कि आपको और भी इलिसिट एक्टिविटीज जिनका लिंकेज है ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ, आपको बाकी के भी बारे में मालूम है. तो 1-2-3 अगर आप मेंशन कर दीजिएगा तो इट विल डू गुड. सो इलिसिट एक्टिविटी एक तरफ, उनका लिंकेज एक तरफ, एग्जाम्पल एक तरफ. क्लीन एंड द मोस्ट परफेक्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, कॉलम, रो एंड कॉलम मेथड से तीनों पार्ट को डिवाइड करिए. इलिसिट एक्टिविटी बताइए क्या है, उसका लिंकेज बताइए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए. ठीक है, तो ये 3 तो है ही. इसके अलावा टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म है, फेक करेंसी नेटवर्क्स, साइबर क्राइम एंड डार्क वेब, अर्बन क्राइम एंड गैंग वॉर्स, इलीगल इमिग्रेशन. एनी 2 or 3 आउट ऑफ देम, है ना, because you have to talk about the steps taken also. So keeping in mind the word limit, apart from the 3 mentioned, 2 or 3 you can more illicit activities you can mention, explain the linkage and then explain that with an example. Okay, please go through this framework. Now what are the steps that are taken? अब आप steps की बात करिएगा तो उसके dimensions खोलिए. और डायमेंशंस खोलने का मतलब क्या है कि आप लीगल मेजर्स का बात करिए. टॉक अबाउट द लीगल मेजर्स, टॉक अबाउट व्हाट इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर डूइंग, है ना, व्हाट आर द मेजर्स टेकन, 1 or 2, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना है ना, वो तो ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, बट रेलिवेंट चीजें लिखनी है. ठीक है, देन सर्वेलेंस एंड टेक यूज, financial and intelligence, social and rehab measures. ठीक है, then what are the counter measures? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, let's go back to the question. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, what counter measures should be taken to prevent the same. तो पहले आप measures बताइए क्या है, फिर counter measures बताइए क्या है. Okay, so what are the measures? ठीक है, and then explain the counter measures. उसमें आपका legal and regulatory measures, institutional strengthening, examples के साथ border and tech surveillance, financial intelligence and forensics, international cooperation, demand reduction and rehab, community and civil society engagement, data and intelligence sharing. ये आपका counter measures में आ जाएगा. And conclude your answer by telling that how drug trafficking is not an isolated crime. It is a gateway to nexus of organized crimes that threaten India's internal security, youth economy and sovereignty. Calibrated approach zaruri hai, and then you conclude your answer. Okay, so we will end our today's session here. Little takeaways from this session is terrorism and organized crime का notes आपके पास, 1-pager notes आपके पास ready होना चाहिए. Okay, what is terrorism, what is organized crime, इन दोनों के linkages, what are the issues because of terrorism, what are the reasons of terrorism. Same thing with organized crime कि क्या issues हैं, क्या reason है, linkages क्या हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, अगर नेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स है, स्टेट लेवल पे क्या स्टेप्स है, एंड रीसेंट एग्जाम्पल्स. आपके पास एक 1-pager नोट्स इन हर इशू का, इन हर चीज़ों को होलिस्टिकली कवरेज करते हुए होना चाहिए. टाइप्स ऑफ टेररिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एवरीथिंग. यू हैव टू रिमेंबर दैट टॉपिक्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी नीड्स बोथ योर static and current का knowledge का interconnection very nicely. Okay, so if you could mention what the current status is and you can relate it with a current news, that will fetch you more marks.
So please start making your one pager notes. टेक हेल्प ऑफ द PYQs, टेक हेल्प ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स. अपने आंसर में इन पॉइंट्स से पुटअप करिए कि आप क्या क्या याद रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें याद रह सकती हैं आपको. एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग आंसर्स. राइट, आप दिन के 2 ही आंसर लिखिए, बट लिखिए. डोंट लिव इन द फियर ऑफ कि आई एम गोइंग टू राइट वेरी बैड आंसर्स. अभी तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ लिख ही नहीं सकती हूँ. वो टाइम, ट्रस्ट मी, वो टाइम कभी नहीं आएगा. That time is never going to come where you will feel कि अब मेरे को सब आता है, now I can attempt everything. It's a process. You go step by step. The more you write, the more content you gather, the more better understanding of the question you gather. So please go through this framework of questions again. Next class में we will discuss the remaining the remaining topics that we have left with internal security. We'll address few of the questions that have been asked, and then we will move forward with the next topic. Okay, so thank you everyone, all the best.